Everybody, so let's get started. We'll start with Ranbir and Alia Bhatt. As you have seen in the introduction video, heads up video of today, what are we doing? So I'm not going to go into how the inspiration happened and what are we basically looking into. If you have watched that heads up video, you already know that. So let's get started. So at this point in time, what kind of energy is really prevalent in their relationship? And what is that you can know? God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us. What is that we can know about Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's marriage? What is that is happening? What's the major energy like? What is that the fans can know? And this is what you can know. Fork in the road का protection message है. Fork in the road is, you know what? This is the saying which says that कि कुछ इशू आ गया है एंड देर इज सम काइंड ऑफ इशू दैट यू आर गोइंग थ्रू. चॉप चॉप भी है एट द बैक ऑफ द डेक. नाउ गिव मी अ सेकेंड. All right, let's read this from the horse's mouth itself. Meaning of the card is time to make a decision. तो क्या रणवीर एंड आलिया there is some kind of crucial point पे है जहाँ पे उनको कोई किसी तरह की decision making कर रही है. चलिए हम इसको डिटेल्स जरूर देखने वाले हैं टैरो से भी. Consider the consequences as you prepare to act, owning up to your obligations to make a necessary choice. तो quite possibly ऐसा लगता है रणबीर कपूर, यस, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट के लाइफ में, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग का कुछ मोड आया हुआ है जहाँ पे डिसीजन लेना ज़रूरी है उनके लिए. ऑल राइट, रिलेशनशिप का गाइडेंस ले लेते हैं. यू हैव रीच्ड अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ इन द एवोल्यूशन ऑफ योर रिलेशनशिप. तो अब जल्दबाजी में लास्ट ईयर उन्होंने, आई थिंक लास्ट ईयर शादी की थी ना, तो जब भी है उन्होंने शादी की. इट्स बीन लाइक मोर देन 1 year नाउ. अब काफ़ी लॉट ऑफ वाटर हैज़ गॉन अंडर द ब्रिज. अब क्या है कि रिलेशनशिप को इवॉल्व करने का समय आ गया है. विच वे विल यू चूज to open up to the possibility of love or to remain isolated, to go deeper and commit to the mutual passion or walk away. हालांकि इनका प्रोटेक्शन मैसेज था ना, तो प्रोटेक्शन मैसेज पढ़ते हैं. Indecision is extremely frustrating. ओके, तो यही वाली चीज़ है. यहाँ पे क्या था कि आपको कोई डिसीजन लेना था और यहाँ पे क्या है कि डिसीजन लेने का जो नॉर्मल टाइम फ्रेम था ना वो भी ख़त्म हो गया है. और अब क्या हुआ है कि अब आप डिसीजन नहीं ले रहे हो किसी चीज़ पे, इनको शायद डिसीजन लेना है और वो टाइम फ्रेम जो था डिसीजन मेकिंग का वो भी ख़त्म हो गया है. एंड वो एक, क्योंकि आप उस ड्यूरेशन में टाइम आपने डिसीजन नहीं लिया तो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है. ऑल राइट, ओके. Indecision is extremely frustrating and will lead to anxiety, loss and confusion. At this juncture, you can't remain in a place without losing your way together. Avoid the tendency to let others choose for you, which amounts to a subtle refusal to take responsibility. यानी कि डिसीजन ऐसा हो रहा होगा कि डिसीजन दोनों को लेना है, दोनों ही नहीं ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रहा है और एक दूसरे पे शायद डिसीजन मेकिंग टाल रहे हैं. But you will have to take the responsibility. Don't give your power away, not even to this oracle. But not making a choice, you are making a choice. जब आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं वो भी एक तरह का डिसीजन ही है. But not making a, for which you must be accountable. If that choice leads to undesirable circumstances, take heart. Spirit never tires of giving you second chances. You can always start again once you have learned this valuable lesson. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं रिलेशनशिप में जहाँ पे कुछ तो है जिस पे डिसीजन मेकिंग करना है, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं. एंड नहीं, डिसीजन लेना भी एक तरह का डिसीजन ही होता है. और स्पिरिट गाइड्स ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि अगर आप डिसीजन नहीं भी लेते हैं ना तो वो भी एक तरह का चॉइस आप कर रहे हैं और फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेज होगा. बट एनीवेज यू विल ऑलवेज गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न योर लेसन्स. अब ये किस तरह का डिसीजन मेकिंग है, क्या हमको टैरो से कुछ पता चलता है? दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू सी. सो लेट्स टेक दिस कार्ड हियर. गिव मी अ सेकेंड.
All right, so I wanted to throw in some tea leaves for this guidance, so let's see. Thank you so much, dear angels, for the divine guidance and blessing coming for all the people involved in this reading. What is that we can know about Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's married life, relationship? Okay, this really wants to come out, guys. क्या है ये? A distant friend is thinking of you. डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. क्या इसके कारण कोई परेशानी हो रही है? क्योंकि हम बार बार एक डिसीजन मेकिंग का बात कर रहे हैं रिलेशनशिप में. रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट मैरिड लाइफ, व्हाट इज दैट द फैंस कैन नो? Let's do one thing. Let's take this one here and let's take this one here. Let's take the month and let's take this one also. Let's see. Let's take this. Let's take this. Let's take this. All right. तो कौन से कार्ड्स हमें आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं मंथ ऑफ द ईयर क्या है. मई. हो सकता है मई से कुछ प्रॉब्लम होगा, मई में कुछ चीज़ें आई होंगी. हाउस देख लेते हैं कौन सा. सक्सेस से रिलेटेड कुछ है. All right, what are the other tea leaves we are getting? Candle, you will be shown the way. Okay, definitely confusion है, indecision है, तो समझ में आ सकता है कि yes, you will be shown the way. कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इसीलिए डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है ऑब्वियसली. बैरल से क्या है? You feel something is lacking in your life. That is quite a bomb inside coming, right? 1 year, more than 1 year down the line, you feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals. तो किसी एक को लग रहा है कि लाइफ में ना वो थोड़ी सी एक क्या बोल सकते हैं, यू नो, एक कमी सी आ गई है. ऑल राइट, ओके. बेयर स्पिरिट आके क्या बोल रहा है? डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. यहाँ पे भी सक्सेस हम देख रहे हैं. मनी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है कि हो, वी डोंट नो, वी विल हैव टू सी. वेकेशन के बारे में बोला जा रहा है. एंड ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड. तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे कि हाउ द मीनिंग्स ऑफ दीज टी लीव्स रिफ्लेक्ट इन दी टैरो कार्ड्स एंड हाउ दे एड ऑन टू द थिंग्स. तो वेकेशन शायद इसीलिए क्योंकि मैम हो सकता है कि रिलेशनशिप थोड़ी लैकलस्टर हो गई है और उनको लग रहा होगा कि वेकेशन की ज़रूरत है टू रिजुविनेट दी मैरिड लाइफ एंड ऑल दैट. डेफिनेटली कन्फ्यूजन फील कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि लैकलस्टर फील कर रहे हो, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो. मैरिड लाइफ में एक बोर्डम आ गया है. यू विल बी शोन द वे. इसका मैसेज हमको टैरो से ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा व्हेन वी विल कनेक्ट द डॉट्स. किसी तरह का मनी का मैटर हो रहा है, सक्सेस है और मई का महीना भी है. और कोई एक एक्सक्यूज मी गाइज, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू. तो क्या इस डिस्टेंट आदमी के कारण कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ थर्ड, not really like third angle, but okay, there is one person that is showing up and we will see how this person is linked to this these two people. Sorry. कैसे connected है. मुझे लगता है कि मैंने एस ऑफ कप देखा है और ये वाला एट ऑफ पेंटिकल्स देखा है. आई एम गेटिंग दैट प्रॉब्ली दे आर मेकिंग, वर्किंग ऑन rekindling romance in their relationship once again. Boom, do you see this? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं पे रिलेशनशिप हर्ट हुआ है तो आप करियर पे फोकस कर रहे हो, है ना. एक लैकलस्टर बोर्डम रिलेशनशिप में
This is what we are picking up. Let's continue and see what we can get more. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Guards and Spirit Guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us. What is that fans can know about Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's married life or their relationship, whatever. चलो यहाँ पे देखते हैं. ये है जस्टिस, यहाँ पे है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट आ गया है. दिस इज जस्टिस व्हाट दे गॉट इन देयर मैरिज. फाइनली थिंग्स कमिंग फुल क्लोजर. जस्टिस मिल गया. रिलेशनशिप स्टार्ट की. जब रिलेशनशिप स्टार्ट की, मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कमेंट सेक्शन में कभी कभार देखी हूँ कि दे से दैट आलिया हैज़ मैनिफेस्टेड दिस रिलेशनशिप. चलो ठीक है, बढ़िया बात है. उसने मैनिफेस्ट कर लिया, उसको जस्टिस मिल गई. लेकिन अब क्या है कि अब मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में. दिस इज एग्जैक्टली द एनर्जी ऑफ व्हाट कार्ड. यू विल बी शोन द वे, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है. स्पिरिट गाइड्स ने भरोसा दिलाया है कि तुमको आगे में रास्ता पता चलेगा. बाय द वे, बैरल वाला कार्ड यहाँ पे सटीक बैठता है. यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी, गोल्स, व्हाटएवर. सो दैट इज व्हाट इट इज. लेट्स कंटिन्यू. सबकॉन्शियस लेवल में क्या चल रहा है. कहीं पे आपको लग रहा है कि देखो सबकॉन्शियस लेवल में जो रिलेशनशिप है इनकी, आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर का, वो कुछ ऐसा है कि वहाँ पे ना अकेलापन है. 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में अकेलापन है. ना सबकॉन्शियस लेवल में अकेलापन है, इसका मतलब कि अंदर में तो रिलेशनशिप इज लाइक 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. You are not feeling understood, you are not feeling supported, you are feeling left alone. और इसीलिए यहाँ पे भी आपका क्या दिख रहा है, एक लचर सी एनर्जी दिख रही है, लैकलस्टर एनर्जी. कॉन्शियस लेवल में आप फील कर रहे हो, डील कर रहे हो. आ कहाँ से रहा है, द लोनलीनेस, द अनसपोर्टेड दैट दे आर फीलिंग इन द रिलेशनशिप. अब ये दोनों की ही एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है. अब कौन ज़्यादा फील कर रहा है. इफ़ वी गेट द गाइडेंस, मोर क्लैरिटी, देन वी गेट इट, और एल्स वी कीप गोइंग इन. या पास्ट में सब चीज़ बहुत अच्छा हुआ, उनका ड्रीम था शादी करने का, रिलेशनशिप में थे, शादी भी की, हड़बड़ी में शादी की, जो भी किया, ड्रीम्स पूरे हुए जस्टिस के साथ. कॉन्शियस लेवल पे हम देख लेते हैं, एम्परर की एनर्जी है. ऑल राइट, गोइंग फॉरवर्ड कहाँ जाने वाले हैं. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. एटीट्यूड क्या है, सन का कार्ड है. ओके, किसी तरह का डेथ आ रहा है इनके रिलेशनशिप के आसपास. ओके, अब ये किसी भी तरह का डेथ हो सकता है, नॉट नेसेसरली ऑफ रिलेशनशिप में किसी चीज़ का डेथ हो सकता है. डेफिनेटली एक मेजर चेंज इनके रिलेशनशिप में आ रहा है. but we will see if we can get more clarity as to what is really ending, what is really transforming in their relationship. यहाँ पे अगर आप देखें तो सबकॉन्शियस लेवल में ऑलरेडी 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बोल सकते हैं कि दूरियां हैं, चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, अकेलापन फील कर ही रहे हो, और इसके कारण यहाँ पे अनमनापन भी है. यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, होप्स एंड फियर्स में क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, यानी कि हम आगे लग रहा है कि जैसे बढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना. अब यहाँ पे भी अकेलापन है रिलेशनशिप में, तो जब अकेलापन ही फील कर रहे हो तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे. बढ़ना चाह रहे हो पर लग रहा है कि आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं हम रिलेशनशिप में. होपलेसनेस जैसी कुछ एनर्जी आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि है. और ये 2 ऑफ कप्स आ रहा है. वाओ, गुड फॉर द कपल, द वर्ल्ड इज हियर. तो यहाँ पे देखो इनके लाइफ का जो एक चैप्टर है ना, वो जैसा कि हमने ये वाला मैसेज भी पढ़ा था कि रिलेशनशिप इज एट अ लेवल ऑफ एवोल्यूशन. रिलेशनशिप के चेंज होने का समय आ गया है. आपने एक पढ़ा पहले तो व्हेन दे वर सीइंग ईच अदर, व्हेन दे वर डेटिंग, वो एक फेज था. अभी शादी कर ली है, बच्ची हो गई है, एक फेज वो हो गया है. अब इसको इवॉल्व करके नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ गया. इट्स लाइक क्लोज ऑफ वन चैप्टर एंड स्टार्टिंग सम अनदर चैप्टर, उस तरह की एनर्जी आई है. एटीट्यूड पे सन का कार्ड है. अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियरली एक बेबी का कार्ड है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ जो इन लोगों को, हालांकि यहाँ पे अकेलापन इनके रिलेशनशिप में है, लैकलस्टर है, वो रोमांस नहीं है प्रॉबली, पर एक चीज़ जो इनको एक साथ रखा हुआ है और इनको इट इज, क्योंकि सन का कार्ड है. सन इज अ लाइफ फोर्स एनर्जी. आई मीन व्हेन सन within the sunlight things grow, plants grow, relationship will also grow. तो एक चीज़ जो इनके रिलेशनशिप को बांध के रखा हुआ है, that is the baby. okay, बेबी के कारण they are really bonding well, या फिर एटलीस्ट साथ में हैं,
पॉजिटिव हैं, उस तरह की एनर्जी है. सो द बेबी इज डेफिनेटली कीपिंग देम टुगेदर. बेबी इज द सनशाइन इन देयर रिलेशनशिप, आप ऐसा बोल सकते हैं. ऑल राइट, तो अगर यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड देखिए आप तो बैगेज शायद कम हो रहा है. यस, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है बैगेज, इसीलिए यहाँ पे रिलेशनशिप शायद ठीक हो रही है. ये हम देख रहे हैं. यहाँ तक तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अकेलापन है, मन नहीं लग रहा, रिलेशनशिप में मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, मोजो ख़त्म हो गया है. बच्चे के कारण ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड स्टिल. हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप के लिए एक चैलेंजिंग एनर्जी डेफिनेटली आ रही है गाइज. ओके, और यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड आप देख सकते हैं कि बर्डन थोड़ा सा कम हो रहा है. मे बी यू नो दे हैव कुछ चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं. जो बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ था हर चीज़ का, कोई इंसान, एक इंसान ने लिया है या दोनों ने लिया है, जो भी है, अगर एक इंसान ने लिया है तो वो अपना थोड़ा बर्डन शेयर कर रहा है, शेयरिंग द लोड. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 ऑफ कप्स के साथ हमको लग रहा है कि रिलेशनशिप ठीक हो रही है इनकी. ठीक है, तो दे आर बीइंग शोन द वे. यू विल बी शोन द वे. यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो कि रास्ता दिख रहा है. यहाँ पे अपना शेयर लोड को शेयर करना स्टार्ट किया. यहाँ पे देखो किसी तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके रिलेशनशिप में. क्या ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली आ रहा है, वी विल क्लैरिफाई दैट. बट हाँ, रिलेशनशिप फिर से स्ट्रांग डेफिनेटली हो रही है इनकी. शायद कुछ वेकेशन होगा जहाँ पे वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. सक्सेस का कार्ड आया था, विच इज अगेन द 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो सक्सेस उनको रिलेशनशिप में मिल रहा है. किसी चीज की चिंता, शायद क्वाइट पॉसिबली मे से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे इनके रिलेशनशिप में. विश विल नॉट बी ग्रांटेड है यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप वर्कआउट कर रहे हो चीजों पे. डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं. तो अब हम देखेंगे क्लैरिफायर्स निकाल के कि कुछ चीज़ों पे हम रोशनी डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं. किसी चीज़ से डिसीजन लेने का मैटर आ गया ना, व्हाट डिसीजन दे हैव टू. शायद यहाँ पे जो कुछ चीज़ एंडिंग की तरफ आ रही है तो यहाँ पे कुछ डिसीजन शायद लेना होगा उनको. Can we please have the clarifier for 4 of cups in 4 of cups? ये जो डिमोटिवेशन है, डिससैटिस्फैक्शन है, किस चीज से रिलेटेड है? 2 of wands. Like they want to move forward. कुछ करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, उस तरह की एनर्जी लग रही है. एक ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. दिस लुक्स लाइक अ वेरी रणबीर कपूर की एनर्जी. ओके, जैसे कि हम पहले भी देखते थे व्हेन ही वाज अ बैचलर, राइट ही हैड सो मेनी लिंक अप्स विद सो मेनी गर्ल्स. तो एक तरह की बहुत स्कैटर्ड एनर्जी है बंदे की. ही इज ऑलमोस्ट लाइक रेस्टलेस एंड ही लुक्स लाइक यू नो ही काइंड ऑफ कुछ ना, माने कि अभी क्या है कि इमोशंस कप्स जो है ना अभी जो उसके पास है उसमें इसको शायद, क्योंकि अभी तक हम कुछ बता नहीं पा रहे थे कि किसकी एनर्जी है, बट क्वाइट पॉसिबली सीइंग द पर्सनालिटी ऑफ बोथ द पीपल एज फार एज एटलीस्ट माई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न, ऐसा लग रहा है कि अभी जो उसके पास है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कुछ और ही के बारे में उसको इंटरेस्ट आ रहा है. एंड ही वांट्स, ऐसा लगता है कि जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ ना उसकी अपनी जिंदगी थोड़ी सी, जो 9 ऑफ पेंटिकल इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कार्ड. इट इज अ सेल्फ एम्पावरमेंट. इट इज लाइक you know you achieving your own dreams, you doing your own things, you being confident. एक फ्रीडम वाली एनर्जी आती है. तो उसे लग रहा है कि एक बंधा सा यहाँ पे फील हो रहा है. he is not able to do what he wants to do. आगे कुछ बढ़ नहीं सकता. यहाँ पे देख रहे हो ना, आगे बढ़ नहीं सकता. तो कुछ ना कुछ, अब शादी है तो बंदिशें तो होंगी, तो वहाँ पे कुछ बंदी सी एनर्जी लग रही है उनकी. ऑल राइट, अब हम देखते हैं किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके रिलेशनशिप में. लेट्स सी इफ वी कैन गेट सम क्लैरिटी. ऑल राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स तो सेलिब्रेशंस का भी कार्ड है. सेलिब्रेशंस का कार्ड होता है, फैमिली का कार्ड होता है, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी का कार्ड होता है.
looks like probably some kind of issues in the marriage, बच्चे के कारण. बट देखो रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद द डेथ कार्ड आ रहा है, एंड दैट टू ऑल्सो दिस डेथ इज हेडिंग टूवर्ड्स व्हाट 4 of Wands, जहाँ पे सेलिब्रेशंस हो रही है, जो इनका शादी है जो भी है. बट लुक्स लाइक कि येस स्टॉर्म इज डेफिनेटली कमिंग, सम काइंड ऑफ स्टॉर्म इज कमिंग, यहाँ पे भी है. बट लुक्स लाइक दे विल कम स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ इट. ऑल राइट, ये सब चीज़ें हमको पता चल रही हैं. यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में भी अगर देखो तो सबकॉन्शियस में तो डेफिनेटली यू आर लाइक अलग थलग थोड़े से हो रिलेशनशिप में, डेफिनेटली. बट एम्परर के साथ मुझे लग रहा है कि देखो एक सिंपल सी बात समझ में जो आ रही है रिलेशनशिप में, कि रिलेशनशिप में अभी ज़रा मोटिवेशन ख़त्म हो गया टोटली. ये बंदा शायद अपनी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, बंदिश फील हो रही है, अकेलापन थोड़ा सा रिलेशनशिप में आ गया. यू नो दैट जो इनिशियल रोमांस ख़त्म होता है, फिज ख़त्म हो गया, तो वो वाला फेज चल रहा है. हालांकि बच्चे ने इन दोनों को डेफिनेटली बांध के रखा हुआ है. दैट इज़ बच्चा इज़ द स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक बच्चे के कारण ही शायद यहाँ पे भी एम्परर वाली एनर्जी स्ट्रांग हो रही है. और ये दोनों एनर्जी के कारण ये अपनी इस जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो ये रिलेशनशिप जाएगी, क्योंकि ये कमिंग एनर्जी है, इनके एनवायरनमेंट की एनर्जी है, ये चैलेंज है, ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन है टू हेडेड टूवर्ड्स देयर हाउस होल्ड, बिकॉज दिस इज क्लियरली अ हाउस होल्ड का कार्ड, सेलिब्रेशंस का कार्ड. तो किसी तरह का चैलेंज इनके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है. बट बिकॉज यहाँ पे एटीट्यूड भी स्ट्रांग है, कॉन्शियस लेवल पे भी आप चीज़ों को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ से आप अपने बर्डन शेयर करना स्टार्ट किए हो, चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट किए हैं. और यहाँ पे 2 of Cups के साथ उनकी रिलेशनशिप लग रही है कि फिर से एक नया स्पार्क, नई अंडरस्टैंडिंग फिर से रिलेशनशिप में आ रही है, ऐसा लगता है. तो इफ़ वी कैन गेट अ क्लैरिफायर फॉर 2 of Cups देन इट्स गोना बी ग्रेट डियर एंजल्स. या ये अपने मैजिशियन पावर को टैप इन करेंगे. ये द लवर्स का कार्ड है ना, बिफोर लवर्स. तो अभी क्या है कि मैरिज एंड इट्स बेसिकली फिज आउट ऑफ द रिलेशनशिप. फिज इज आउट ऑफ द रिलेशनशिप. इट्स ऑल अबाउट यू नो चेंजिंग द नैपीज, ये वो परेशान हो गए दोनों, रोमांस खत्म हो गया है, लाइफ लैकलस्टर हो गई है. बट दिस इज लाइक गेटिंग देयर पावर बैक इन द रिलेशनशिप. तो इसी तरह की कुछ एनर्जी लग रही है इन दोनों की. बट या मेजर चेंजेस हेडेड देयर वे. अब हम क्या करेंगे कि गिव मी अ सेकेंड, वी विल पुल द सरेंडर कार्ड एज यूजुअल फॉर बोथ ऑफ देम. गाइडेंस कमिंग फॉर आलिया भट्ट फॉर हर रिलेशनशिप विथ रणबीर कपूर. आलिया को बोला जा रहा है कि ये ड्रामा में जो पढ़ती रहती है, ड्रामा मत करो, बिकॉज क्वाइट पॉसिबली दिस गाय इज नॉट लाइकिंग शी गेटिंग इनटू ऑल काइंड ऑफ ड्रामा और अट्रैक्टिंग ड्रामा. तो आलिया को बोला जा रहा है कि अगर रणबीर के साथ रिलेशनशिप ठीक रखना है ना, तो डोंट गेट इनटू ड्रामा, डोंट इनवाइट ड्रामा अननेसेसरीली. अब रणबीर के लिए देखते हैं क्या बोला जाता है. गाइडेंस कमिंग फॉर रणबीर का कार्ड नीचे गिर गया. ऑलराइट, रणबीर कपूर के लिए क्या है, सरेंडर योर एडिक्शंस. हमने यहाँ पे कुछ बात भी की है ना एडिक्शन की. वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस, फूड, पीपल, सेक्स और ओवरवर्किंग, take action to begin to heal the addiction and replace it with a healthier alternative. तो अभी अगर इस बंदे को इसके साथ रिलेशनशिप ठीक रखना चाहिए तो इसको अपने एडिक्शंस पे कंट्रोल करना चाहिए. Excuse me. So that is what it is. Easy breezy some message and then we will control. Complete it. See, one chapter of their married life is over. Now the next chapter comes in. And next chapter आप देख रहे हो, this is rekindling of the romance. But ये समझ में नहीं आया कि what is this? A distant friend is thinking of you. इसका क्या मतलब हुआ? ये कार्ड क्यों आया होगा इनके रिलेशनशिप में?
चलो देखते हैं, अगर ये दोनों कार्ड्स निकाल के देखेंगे, अगर कुछ से गाइडेंस मिलेगा तो ठीक है, वरना 3 कार्ड्स इसके लिए पुल करके समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ दिस कार्ड इज लिंक्ड टू दीज 2 पीपल. ओके, वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी है, कोई चिंता की बात नहीं है. ये वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी आप देख सकते हैं, सक्सेस देख सकते हैं. तो इवन दो द चैलेंजेस इनके रिलेशनशिप में अभी तो डिफरेंसेस है या फिर बोरिंग है, बोर्डम आ गया रिलेशनशिप में, बट गोइंग फॉरवर्ड चैलेंजेस भी आने वाला है, बट दे विल ओवरकम द चैलेंज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी है, सक्सेस भी है. गाय के लिए चैलेंज क्या, गाइडेंस क्या है? लेट योर सेल्फ रिसीव. क्या है इसका? Allow others to give you love, care, receiving without guilt and apologies. I don't know why is he feeling guilty of anything, but okay. तो यहाँ पे हमें कुछ, give me a second. So we will pull 3 cards for this to understand how this card is linked to Alia Bhatt and that Ranveer Kapoor. Thank you to Rangers for the guidance coming for how this card is linked to Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's marriage, their relationship. All right. यहाँ पे भी टेम्परेंस का कार्ड है एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड है. ओके, एंड व्हाट इज दिस? फूल्स जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हुई है रिलेशनशिप की. नो वेट ऑन, हैंग ऑन. ओके, यहाँ पे तो टेम्परेंस है, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड. डॉग इज अ फार अवे डॉग. डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट यू. यहाँ पे फूल का कार्ड आया है. Dog say it could be some kind of loyalty we are talking about here, or we are seeing here loyalty है यहाँ पे, लेकिन 7 of sword का कार्ड भी आ गया है. Now dog is about loyalty and the 7 of sword is about lying, theft, चोरी, ये सब चीज़ें हैं. तो डॉग के ऊपर यह चोरी वाला कार्ड क्यों आया है? यहाँ पे है टेम्परेंस. यहाँ पे भी एक अच्छा सा अ कपल इज सिटिंग एंड हैविंग अ नाइस डाइनिंग शाइनिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे एक लड़की देख लग रहा है जैसे कि शी इज़ वॉकिंग इनटू सम काइंड ऑफ न्यू जर्नी. I'm not sure, if it looks like maybe there could be some deception. यहाँ पे किसी तरह की चीज़ें क्लियर नहीं है. There is some kind of trickery over here related with that distant friend. तो हो सकता है कि डिस्टेंट फ्रेंड, किसी का भी कोई डिस्टेंट फ्रेंड है, या तो बंदे का फ्रेंड है या तो बंदी का फ्रेंड है, कोई डिस्टेंट फ्रेंड है जिसके कारण चीज़ें बहुत क्लियर नहीं है रिलेशनशिप में. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने क्लैरिफायर मांगा है तो हमको टेम्परेंस का कार्ड आया है. टेम्परेंस में यहाँ पे एक कपल है जो कि दे आर हैविंग दिस, दे आर फाइन डाइनिंग एंड दे आर एंजॉइंग द कंपनी. पर इसके बाद ही ये जो चीज़ हो रही है, दिस इज लीडिंग टू सम काइंड ऑफ ट्रिकरी एंड सम काइंड ऑफ somebody kind of starting a new journey. पता नहीं, कोई थर्ड एंगल जैसी कुछ लग रहा है, जैसा ऐसा कुछ है क्या? ओके, लेट्स गेट मोर क्लैरिफायर. सी, यहाँ पे एक इंसान डेफिनेटली, अगर आप देखो तो somebody is kind of, आप डेटिंग बोलो, डाइनिंग करो, जो भी कर रहा है, इसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रिकरी क्रिएट हो रहा है इनके रिलेशनशिप में. दिस पर्सन कुड बी द थर्ड पर्सन और दिस कुड बी द थर्ड पर्सन. अगर ये बंदा है तो ये बंदा थर्ड पर्सन हो गया, अगर ये बंदी है तो ये थर्ड पर्सन हो गया, जो भी है. सो वन पर्सन किसी थर्ड पार्टी के कारण प्रॉब्लम्स लगता है हो रही है, जिसके कारण ट्रिकरी है, चीज़ें क्लियर नहीं है.
एंड यहाँ पे एक तरह की न्यू जर्नी भी है किसी की। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सरेंडर कार्ड निकाल के कि क्या होता है। A key to positive change in your life is to let joy in, savor it, indulge in random acts of smiling, doing both the hard and easy, during both the hard and the easy times. Yeah, keep surrendering to more joys. तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ट्रिकरी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये लोग डेफिनेटली फेस कर रहे हैं। देर कुड बी सम थर्ड पार्टी एंगल जिसके कारण देर इज़ अ ट्रबल इन द पैराडाइज, बट यही बोला जा रहा है। और डिफरेंसेस चैलेंजिंग फेज तो करियर का सॉरी इनके रिलेशनशिप का आ ही रहा है विद दिस डेथ थिंग। सो ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड द ईजी टाइम कीप सरेंडरिंग टू जॉय। तो अप्स एंड डाउन्स ऑफ रिलेशनशिप तो अभी फिलहाल चैलेंजिंग फेज डेफिनेटली आ रहा है या होगा या आने वाला है। अभी तो cold behavior and the nonsense. So this is what we are getting. So that was the guidance coming, guys. Do let me know your thoughts and I will see you again. Take care and bye for now.